Okay, so basically today topic name is ACL. We discuss ACL topic and first clear ACL means it's called access control list. Okay, why we use ACL? If someone asking, it's help to filter data traffic. अच्छा एक और पॉइंट लिख लो, इट्स हेल्प filter data on the basis of layer 3, layer 4 protocols, services, port numbers. Clear? So आप डेटा फिल्टर कर सकते हो लेयर 3, लेयर 4 प्रोटोकॉल, सर्विसेज एंड पोर्ट नंबर. वन मोर थिंग, network engineer can define action if data traffic match for filtering. So action is only two types. One is my a permit and second action is deny. So दो ही action है. Okay. Now one more thing. ACL can be configured on layer 2 switch, layer 3 switch, routers, firewalls, access points, load balancers. Now one more thing, ACL types. So we are getting a two types of ACL. One is my standard ACL. Second is my extended ACL. So basically standard or extended means what is the difference? So basically standard ACL having some range 1 to 99. Extended ACL range is ratio 100 to 99. Okay, how many? 100 to 199. Now one more thing, before learning ACL must be clear some ACL rules. What is the ACL rule? First statement, Aditya, Rishabh, Jiben, first statement always, which one dear? Deny. One more thing, last statement always, which one? Permit. Third thing, ACL always configure before processing routing. ओके, सो ACL हमेशा पहले मैच होनी चाहिए राउटिंग करने से पहले. एक और बात समझो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस स्टैंडर्ड ACL में क्या है और एक्सटेंडेड में क्या है. फर्स्ट पॉइंट, रेंज. आप रेंज डिफाइन कर सकते हो 1 to 99. अच्छा, एक नंबर को अगर यूज करा सो मल्टीपल स्टेटमेंट. ओके, एक नंबर में बहुत सारी मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती है. सेकेंड थिंग, ओनली वर्क ऑन लेयर 3, ओनली स्टॉप और फिल्टर IP ट्रैफिक, उसी के लिए काम कर सकता है. नाउ वन मोर थिंग,
always configure closest to the destination. हमेशा destination के पास रहना चाहिए. Next thing, if network engineer use standard ACL, then only source information required. सिर्फ source की ही देनी है. If deny the user for IP communication, then stop all communication. All communication means you can deny layer 3, you can deny layer 4, protocols, services, port numbers, everything is denied. If you deny someone for IP communication, so this person also deny for layer 3, layer 4, protocol, services and port number. Now one more thing for extended. Extended means we are getting a range 100 to 199. Okay. Now next thing. Work on layer 3, layer 4, protocols, services, port number. Now one more thing. Possible to filter layer 3, layer 4, protocols, services, port number traffic. Now one more thing. Always configure nearest to the source. Next thing, possible to deny specific information. Okay. Now one more thing. Network engineer have feature to define source, destination, protocols, services, port number. So ये सब हम बता सकते हैं. ठीक है. Okay. Now one more thing. We need to learn the next thing is data flow. Data flow. Basically, data flow means, for example, we create a diagram. We are getting the router. We are getting one more router. Okay. And this router connected with my switch. This one is also switch. Switch having some users. This router connected with switch, connected with server, server 1, server 2, and server number is given 3. Router 1, router 2, both are connected physically. Gig 0 by 1, gig 0 by 0, gig 0 by 2, gig 0 by 0. Done? Now, give me 1 second, hold on. आदित्य, वॉइस आ रही है आदित्य? Yes, sir.
अभी वॉइस नहीं आ रही सर। आदित्य वॉइस आ रही है भाई? ऋषभ, जिबिन। हाँ जी आ रही है। ओके, सो बेसिकली क्या है ना, ये डिजाइन है मेरा। इसमें डेटा फ्लो सीख लो भाई। ओके। डेटा फ्लो का मतलब, फॉर एग्जांपल, मैंने राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में राउटिंग कर रखी है। ठीक है। अब PC 1 क्या बोल रहा है, मुझे कम्युनिकेशन करना है। क्या करना है? अब PC 1 को अगर कम्युनिकेशन करना है PC 2 से तो हो जाएगा। अगर इसको किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो डेटा कैसे फ्लो करेगा? जैसे PC 1 का स्विच पे, स्विच से राउटर पे, तो ये वाला इंटरफेस क्या कर रहा है, डेटा को अब इन, और जब डेटा यहाँ से बाहर जाएगा तो ये 0 बाय 0 क्या करेगा, डेटा को आउट। और सामने वाले पे डेटा क्या हो रहा है, दोबारा से चेक करिए। अच्छा, जब डेटा नीचे जाएगा तो ये इंटरफेस क्या करेगा, डेटा आउट। अच्छा, सेम टू सेम प्रोसेस, अगर ये कोई सर्वर रिप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये इंटरफेस क्या करेगा, डेटा को इन। फिर यहाँ से वो डेटा बाहर जाएगा तो क्या होगा, सामने वाले पे डेटा दोबारा से क्या होगा, फिर यहाँ से बाहर डेटा आउट। तो यही डेटा फ्लो था यार। अब जब भी ACL लगानी है वो, फॉर एग्जांपल मुझे इन सब यूजर पे कुछ काम करना है, तो मुझे ACL लगानी है तो राउटर 1 पे, या अगर राउटर 2 पे तो कहाँ पर लगानी होगी। तो अगर मैं चलाऊंगा स्टैंडर्ड तो वो चलेगी सिर्फ डेस्टिनेशन पे, यानी अगर इन यूजर को कुछ ब्लॉक करना है इन सर्वर से रिलेटेड तो वो कहाँ पर जाएगा, राउटर 2 पे। अगर मैं यूज कर लूँ कौन सी ACL भाई, एक्सटेंडेड, तो वो कहाँ चलती है हमेशा, सोर्स पे। तो यहीं पर आएंगे ना सारे पर्सन, सोर्स राउटर पे, और ये इनका डेस्टिनेशन, तो सोर्स पे लगाओगे। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर हो गई। अच्छा, स्टैंडर्ड कहाँ हो गई, राउटर 2 पे, एक्सटेंडेड राउटर 1। तो देखो यहाँ पर कैसे चलता है टास्क। स्टैंडर्ड से राउटर 2 पे होगा।
एक्सटेंडेड कहीं पर भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन एक्सटेंडेड हमेशा वहां पे लगाओ जहां पर आपका क्या हो, फर्स्ट पॉइंट हो। फर्स्ट पॉइंट का मतलब राउटर 1, सोर्स पे लगता है ये, यहाँ लिखा ओके। होगा ना, लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है? डेस्टिनेशन। चलो अब बात समझो। दूसरी बात, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है आपके लिए? स्टैंडर्ड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल में एक टास्क दे देता हूँ। टास्क क्या है? दिल्ली यूजर ओनली एक्सेस, किसको एक्सेस कर सकते हैं वो लोग? सर्वर 1 को, ठीक है। नोएडा यूजर ओनली एक्सेस किसको कर सकते हैं? क्या लिखा है भाई? सर्वर 2 को। यानी अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली यूजर्स क्या सर्वर 2 को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं। इनको क्या करना है हमेशा में? क्या करना है भाई इनको? डिनाई। नोएडा यूजर किसको एक्सेस नहीं कर पाए? जिबिन सर्वर 1 को, है ना। अब बात समझो, टास्क कैसे करेंगे वो ध्यान दें। टास्क ये है कि हमें टास्क करना है डिनाई वाला, तो परमिट तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैं दोनों टास्क हटा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, टास्क क्या है सिर्फ आप लोगों का, कि दिल्ली की ब्रांच वाले यूजर ये वाले कभी भी सर्वर 2 को एक्सेस ना कर पाए, नोएडा ब्रांच वाले कभी भी सर्वर 1 को। क्यों? बेसिकली जब आप यहाँ पर राउटिंग चलाओगे, क्या चलेगा जेबिन? यहाँ पर जब भी आप क्या करोगे, राउटिंग, राउटिंग का मतलब कम्युनिकेशन सब आपस में कर सकते हैं ना। तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको क्या करना है? आपको फिल्टरिंग परफॉर्म करनी है। और फिल्टरिंग जब करेंगे तो उसमें एक्शन क्या रहेगा? सिर्फ हमारा डिनाई वाला। अब कैसे काम होगा यहाँ पर वो समझो। स्टैंडर्ड एसीएल कैसे चलती है, तो मैं राउटर 2 पे लगाऊंगा इसको, क्योंकि सबका डेस्टिनेशन यही है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस पे क्या कमांड चलेगी, एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट के बाद क्या बताना है आपको? एक्सेस लिस्ट का नंबर, और नंबर कहाँ से कहाँ तक रहेगा स्टैंडर्ड का? 1 से 999। फिर आपको बताना है उसका एक्शन। एक्शन सिर्फ दो ही होंगे, या तो आप उसे परमिट बोल दो, या तो आप उसे डिनाई बोल दो। फिर आपको किसकी इंफॉर्मेशन बतानी है जिबेन, आदित्य? तो सोर्स। सोर्स की तीन ही इंफॉर्मेशन बता सकते हो, तीन ही टाइप की। जैसे पहली, एक होस्ट। होस्ट का मतलब सिंगल पर्सन, या लिख दो एनी, कोई भी। या फिर एक हो सकता है नेटवर्क एड्रेस या सिंगल पर्सन, तो उसके लिए A.B.C.D। अब ये बात करेंगे कैसे डिफाइन करना है। ये स्टेटमेंट चलती है फिल्टरिंग करने के लिए। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, राउटर 2 पे गया, मैंने कमांड लिखी जैसे एक्सेस लिस्ट 1, एक्शन इज डिनाई, और किसको कर रहा हूँ? होस्ट। होस्ट का मतलब सिंगल पर्सन। मैंने बोला भाई 1.2 किसको एक्सेस ना कर पाए, 2.10 को। तो मैं सिर्फ सोर्स ही बता पाऊंगा इसमें, तो मैंने लिख दिया 192.168.1.2। और अगर मैंने ये लिखकर एंटर कर दिया तो हो गया। अब अगर मैंने राउटर 2 पे इसे अप्लाई करना है तो कैसे होगा? इंटरफेस गिग 0/2, क्योंकि ये इनकमिंग पे लगेगा। अगर मैं इसे लगा दूं आउटगोइंग, आउटगोइंग कर दिया तो राउटर राउटिंग देखकर उसका ट्रैफिक बाहर भेज देगा। तो इस केस में 0/2 पे जाऊंगा, IP एक्सेस ग्रुप ACL का नंबर। तो ACL का नंबर क्या है? हमने क्या लिखा था, 1, और फिर एंटर। नहीं, अब मुझे इसमें डायरेक्शन कैसी है, इन। अगर आउट हो तो आउट। जिससे राउटर पे लगा क्या हो गया, अब राउटर सिर्फ इसी पर्सन को चेक करेगा, लेकिन साथ साथ वो एक एक्शन भी लेगा जिसको बोलते हैं इम्प्लीसिट डिनाई। यानी अगर 1.2 आ रहा है ट्रैफिक लेकर तो वो डिनाई हो रहा है, अगर 1.1 आ रहा है तो वो भी डिनाई, 2.1 2.2 सभी डिनाई हो रहे हैं।
तो इस केस में आपको इम्प्लीसिट डिनाई नहीं करना है। अब आपको एक स्टेटमेंट चलानी है, एक्सेस लिस्ट 1, और एक्शन क्या लगाना है, परमिट एनी। इसका मतलब सिर्फ वो 1.2 के ट्रैफिक को यहाँ पर मैच करेगा इस स्टेटमेंट में और डिनाई। अगर 1.1 आएगा तो उसको अलाउ कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप सिर्फ सोर्स बता रहे हो। क्या बता रहे हो आप लोग यहाँ पे? सिर्फ सोर्स। सोर्स, डेस्टिनेशन मैंने बोला नहीं। तो अगर आप 2.10 को डिनाई कर रहे हो तो साथ में 1.10 भी क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो ये दो हो गया ना, एक एक्सेस लिस्ट डिनाई कर दी, एक परमिट। तो ऐसे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है आदित्य जी बिन? प्रॉब्लम क्या है? ये तो क्या है, सोर्स ही बता पा रहे हो, आपने डेस्टिनेशन तो बोला ही नहीं। तो स्टैंडर्ड में एक प्रॉब्लम हो गई कि आप सोर्स पे काम करते हो। अगर आपने 1.2 को डिनाई कर दिया तो उसके लिए सभी कम्युनिकेशन बंद, R2 के। R2 पे जो भी ट्रैफिक रहेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और ACL है जिसका नाम क्या था? सेकंड ACL क्या है? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड ACL। इसमें बात कर लेते हैं। एक्सटेंडेड ACL कैसे काम करती है भाई? ये कहाँ लगेगी, सोर्स राउटर पे या डेस्टिनेशन पे? जैसे इन सभी को अगर किसी सर्वर को एक्सेस करना है तो किस राउटर सोर्स पे? पे। सोर्स। सोर्स राउटर पे, यहीं से तो जाएगा सारा ट्रैफिक सोर्स पे। तो कैसे चलती है? बहुत ही सिंपल है, देखो, एक्सेस लिस्ट। और एक्सेस लिस्ट का क्या बताओ? नंबर। नंबर कहाँ से सिलेक्ट करना है? 100 टू 100, 199। 199। अच्छा, फिर आपको क्या बताना है? फिर क्या बताना है? एक्शन, ये बताना है? नहीं, अब आप ACL बना रहे हो एक्सटेंडेड, तो ACL नंबर, फिर क्या बताओगे? प्रोटोकॉल, कि किस प्रोटोकॉल को डिनाई करना है परमिट। जैसे IP का प्रोटोकॉल, ICMP का, TCP का, UDP का, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर क्या बताना है यहाँ पर? एक्शन। ये दो ही एक्शन है, या तो आप उसे परमिट कर दो या आप उसे डिनाई कर दो। फिर क्या बताना है आपको? किसकी इंफॉर्मेशन? सोर्स, और फिर डेस्टिनेशन। क्लियर है? सो एक स्टेटमेंट चला लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बोला भाई हमें राउटर 1 पे आके चलाने, तो मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट 100 और प्रोटोकॉल IP। एक्शन क्या करते हैं? डिनाई। और मैंने क्या बोला? सोर्स कौन है? होस्ट 1.2। डेस्टिनेशन कौन है जिससे बात ना कर पाए? हाँ जी, क्या लिखा है? 2.10। होस्ट का मतलब सिंगल पर्सन, और IP का मतलब सभी प्रोटोकॉल बंद हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ TCP करूंगा तो TCP बंद, UDP करूंगा UDP बंद, ICMP तो ICMP। वॉइस के लिए सब चाहिए होगा। हाँ जी। यो आईपी के लिए। IP का मतलब सारे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएंगे। ओके। अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हो वो भी हो जाता है। फिर एक स्टेटमेंट लगा दी, एक्सेस लिस्ट 100 IP, और क्या टास्क दे दिया? परमिट। क्या लिख दिया? सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो। तो ये स्टेटमेंट राउटर 1 के किस इंटरफेस पे लगानी पड़ेगी? 0/1 पे या 0/0 पे? इन पे। हाँ जी, कहाँ पर? 01 पे, इन पे। 0/1 पे। मैंने बोला था राउटिंग राइट। होने स्टार्ट से पहले इन पे लगा देना। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्मल स्टेटमेंट आप लगा के आ रहे थे, है ना? मैं होस्ट का मतलब एक सिंगल पर्सन को ले रहा था और होस्ट डेस्टिनेशन भी एक सिंगल था। ऐसा भी तो हो सकता है मैं आपको बोलूँ नहीं मुझे सिंगल नहीं, मुझे पूरे नेटवर्क को बंद करना हो, तो क्या करोगे? डिनाई के बाद सोर्स क्या बोलोगे? 192.168.1.0, उसकी वाइल्ड कार्ड बिट लगा दो। और फिर मैंने क्या लिख दिया? होस्ट कौन हो जिससे बात ना कर पाए? वो 2.10। ये पूरा नेटवर्क, और इससे बात ना हो पाए। क्लियर है? अच्छा, एक और स्टेटमेंट लगा के दिखा दो।
देखो जैसे मैंने बोला भाई कि दिल्ली ब्रांच वाले जो है ना FTP यानी डाउनलोड अपलोड ना कर पाए, और नोएडा वाले भाई वेब सर्विस एक्सेस ना कर पाए, तो इनको बंद करो। तो स्टेटमेंट है एक्सेस लिस्ट, एक नई स्टेटमेंट 101 डिनाई। और FTP कौन सा प्रोटोकॉल है, TCP या UDP? क्या लिखा भाई? TCP। फिर मैंने बोला सोर्स कौन है, फिर भाई पूरा नेटवर्क लेना है भाई अपने को, तो 1.0, उसका वाइल्ड कार्ड बिट 0000255। अच्छा डेस्टिनेशन कौन है, अब ये तो इंटरनेट के लिए जाना चाहते हैं ना, तो मैंने होस्ट क्या कर दिया, ये यहाँ पर जो डेस्टिनेशन आएगा वो कौन कर दिया भाई, एनी। और फिर मुझे EQ लेना है, EQ का मतलब TCP का कौन सा पोर्ट नंबर डिनाई करना है, तो मैंने लिख दिया क्या, 21। EQ का मतलब एक सिंगल पोर्ट नंबर जो डेस्टिनेशन में आएगा। अगर मैंने EQ की जगह क्या ले लिया भाई, हाँ जी क्या ले लिया, रेंज, और मैंने लिख दिया 21,80, तो इसका मतलब कौन कौन सी सर्विस डिनाई कर दी भाई, FTP और वेब HTTP। सर्विसेज। हाँ ये HTTP पे TCP तो चलता है। अच्छा फिर मैंने क्या बोला, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, मुझे तो 80 किसके लिए बंद करना था, नोएडा के लिए, और हमने बंद किसके लिए कर दिया ये, दिल्ली के लिए। तो स्टेटमेंट दूसरी बनेगी, अब इसकी जगह एक ही ये रहेगी, और एक नई स्टेटमेंट बना लो, एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई करना है TCP के लिए 192.168.2.0 डेस्टिनेशन कौन हो भाई, कोई भी हो सकता है ना, DNS सर्वर उसका। तो रेंज की जगह अब क्या ले रहा हूं मैं, EQ 21, नहीं HTTP के लिए 80, और क्या लिख दिया भाई, 44। 443 दो पोर्ट ले लिए, तो EQ चलेगा या रेंज चलेगा, जब दो पोर्ट नंबर हो तो क्या लिखना है रेंज उसमें, रेंज। और बाकी फिर परमिट कर दो यार, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट किसके लिए, IP, कोई भी सोर्स हो, एनी का मतलब कोई भी डेस्टिनेशन। ये तीन स्टेटमेंट कहाँ पे अप्लाई करनी है, 0 by 1। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, हाँ जी क्लियर है आदित्य, जिविन, यस सर। यस सर। इस थ्योरी को क्लियर करके आओ भाई, कल मिलेंगे, ठीक है। ओके। जिबिन can you hear me? जिबिन, आशुतोष, Hello. yeah Jiben, can you hear me? Yes, yes, yes. How's the day? All the all Okay, just go through this video. Tomorrow we do the lab. sure. Bye bye. Bye. Bye, sir.